So, hello guys, welcome to this wholesome study session. Thanks for joining in. So, today we are going to start off with Git and GitHub. I have a pen and a paper in my hands so I can articulate my thoughts and then I will explain you guys after I understand. So, we can start with the website I was referring to. So, this is like roadmap.sh. As you can see the URL, I will provide the link of this website in the description too, so you can check it out from there. So this is like the Git and GitHub roadmap we are going to use it. So we will start with the basics, and you can see there are free resources, a lot of free resources, and I won't be like watching the video. You can watch it for yourself. It is like just 2 minutes, so you can watch it for yourself. And you can also use like premium resources also if you want to pay for resources. एक्चुअली अभी चाय बनाई है थोड़ी देर पहले, तो मैं चाय पीते पीते पढ़ाऊँगा या फिर पढ़ाऊँगा नहीं, आई लिटरली सेट पढ़ूँगा. हाँ, इट इज़ लाइक अ स्टडी सेशन. So let's go with like the UI, graphical user interface clients. So Git comes with built-in GUI tools for committing Git GUI and browsing Git K, but there are several third-party tools for users looking for platform-specific experiences. If you want to add an GUI tool to this list, just follow the okay. तो मुझे काइंड ऑफ पता नहीं है, तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस हैं. तो आई थिंक the best explanation I can come with is like these are skins for Git. I think these are like these look like skins to me actually, in like a very simple way, but these are like kind of, they have pricing and stuff. So I think this is not for us. Getting started and creating account. अच्छा, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जो है, let's start with like what is version control. हाँ, तो basically this is what is version control. So let's go with this. So what is version control? I will write on my pad first. Version control. Version control, also known as source control, is the practice of tracking and managing changes to software code. Version control systems are software tools that help software teams manage changes to source code over time. So, as development environments have accelerated, version control systems help software teams work faster and smarter. They are specific useful for DevOps teams since they help them to reduce development time and increase successful deployments. So सिंपल नीचे वाले में लिखा हुआ है कि वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर कीप्स ट्रैक ऑफ एवरी मॉडिफिकेशन टू द कोड in a specific kind of database. Let me see. Every modification to the code in a specific kind of database. If a mistake is made, developers can turn back the clock and compare earlier version of the code to help fix the mistakes while minimizing disruption to all teams member. अच्छा, डिस्प्यूजन नहीं, डिसरप्शन टू ऑल टीम मेंबर्स. ओके, तो बेसिकली हम लोग इतना तो यहाँ तक तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि अगर देखो SVCS का फुल फॉर्म ये होता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स. तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग ये देख लो. और बाकी बेनिफिट्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये सब चीज़ें बेनिफिट्स अपने आप समझ आ जाएंगे थोड़ी देर जब यूज़ करेंगे हम लोग इसको फर्दर वीडियोज़ में. यू विल अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स. तो वर्जन कंट्रोल करता क्या है, वो बेसिकली ट्रैक करता है. ठीक है, एक तो ट्रैक करता है और दूसरा
मैनेज करता है। सिंपल। और उसके बाद कुछ हम मिस कर रहे हैं क्या यहाँ पर? एंड हेल्प्स सॉफ्टवेयर टीम्स मैनेज चेंजेस टू सोर्स कोड ओवर टाइम। चेंजेस को मैनेज करता है, ठीक है। और हमने कुछ मिस किया। ये हेल्प करता है कि हम लोग बेसिकली फास्टर एंड स्मार्टर वर्क करें, ठीक है। बेसिकली मैं कीवर्ड्स वगैरह लिख रहा हूँ अपने पैड पे, इससे कि मैं बता पाऊँ आपको बाद में। और उसके बाद it is specifically useful for DevOps teams since it reduces development time and increases सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट्स। तो वो तो चलो ठीक है, एक चीज़ है पर्टिकुलर, तो ऐसे ही पॉइंट हो गया। बेसिकली ये बेसिकली मॉडिफिकेशन ट्रैक्स एवरी कोड मॉडिफिकेशन। तो ट्रैक क्या करता है? चेंजेस को ट्रैक करता है, उसको आप बेसिकली तरह से बोल सकते हो मॉडिफिकेशन को ट्रैक करता है इन अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस। अब डेटाबेस में करता है, उसमें कोई इसका काइंड दे नहीं रखा है। इट इज़ लाइक अ डेटाबेस, स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेस। एंड यू कैन ऑल्सो कंपेयर, यू कैन टर्न बैक द क्लॉक, यानी कि यू कैन गो टू द ओल्डर वर्जन ऑफ योर सॉफ्टवेयर एंड यू कैन काइंड ऑफ कंपेयर कि न्यू वर्जन से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। कि अगर मान लो आपकी वेबसाइट थी और आपने उसमें कोई एक नया बटन ऐड किया, उसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे कोई बग आने लगा, तो आप इसलिए कंपेयर कर सकते हो कि मैं इसको थोड़ा सा आई कैन रोल बैक द अपडेट, कि आई कैन गो ऑन लाइक द सेफर साइड, मोर स्टेबल वर्जन ऑफ माई वेबसाइट। तो ये बेसिकली वर्जन कंट्रोल हो गया आपका। तो यू कैन फिक्स एंड कंपेयर ऑल्सो, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे आई गेस। So that's all for it, not for today actually. What is Git? So let's see this article. What is Git? The complete guide to Git. Okay. So Git is like a distributed system, a version control system, DVCS. तो बेसिकली VCS का तो आपने फुल फॉर्म पता ही था, बस डिस्ट्रीब्यूटेड याद कर लो आप अगर। तो Git is like a DVCS, distributed version control system. As the name suggests, version control is all about controlling and tracking डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द गिवन प्रोजेक्ट। तो वही चीज़ है जैसे मैंने बताया ना कि आपकी वेबसाइट है, उसमें इसलिए आपने वेबसाइट में कोई बटन ऐड किया, तो वेबसाइट में बटन ऐड करने से पहले वाला जो वर्जन होगा वो ओल्ड हो जाएगा, और जिस वर्जन में आपने बटन ऐड करके आपने कोड को पुश किया उसी सेम काइंड ऑफ डायरेक्टरी में, तो वो उसका न्यूअर वर्जन हो जाएगा। तो ये बेसिकली उसके बीच का ट्रैक रखता है, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ अ लॉगिंग सिस्टम इफ़ यू कैन रिलेट। what is like a version control system? A VCS tracks and records changes to any file or a group of files, allowing you to recall specific iterations later on or as needed. VCSs are sometimes called source code management और रिवीजन कंट्रोल सिस्टम ऑल्सो। तो ये 2-3 और नेम है। अब ये बेसिकली थोड़ी थ्योरी है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो क्या रहा है। अब फॉर एन एग्जाम्पल चलो इसे यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। वर्जन कंट्रोल अलाउज यूमरस द टीम मेंबर्स टू वर्क, हाँ क्या लिखा है ब्रो, कोलैबोरेटिवली ऑन अ प्रोजेक्ट इवन इफ दे आर नॉट इन द सेम रूम और इवन कंट्री। तो बेसिकली आपको बेसिकली थोड़ा सा, हाउ वुड आई पुट इट, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो काइंड लाइक, अगर बेसिकली अगर आप एक रूम में नहीं, वैसे कि मैं, अच्छा हाँ, इट इज़ लाइक द बेस्ट एग्जांपल। मैं गिटअप पे अपना कोड यहाँ से वो करूँगा, काइंड ऑफ पुश करूँगा, एंड यू कैन काइंड ऑफ कॉपी इट। तो दैट इज़ लाइक द बेस्ट एग्जांपल कि मैं अपना कोड यहाँ बनाऊँ, और अगर आपको वही सेम या फिर आपको उसी कोड में कुछ और ऐड करना है जो मैं अपने नए लेटेस्ट वीडियोस में डालना रहा हूँ, और वीडियोस ऐड करूँगा हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें हम लोग बेसिकली कोडिंग करेंगे। तो मैं इसलिए आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, इससे कि आपको पता चले कि कैसे गिटहब पे आपको कोड, मतलब मैं कोड पुश करूँगा और आपको कैसे कोड को कॉपी करना है। और अगर आपको अपनी डायरेक्टरी में उसको फिर से अपने कुछ एक वेबसाइट बनाई, तो आप उसको उसमें कैसे पुश करोगे। तो दैट इज़ लाइक द बेस्ट वे टू, लाइक इट्स लाइक अ कोलैबोरेशन ओनली, कि आप अपने घर में बैठे हो, मैं अपने घर में बैठा हूँ, बट वी आर लाइक डूइंग अ ग्रुप स्टडी सेशन इन अ वे। सो basically, for example, let's say you are a songwriter,
you are busily working at home on a new song you have planned, penned, मतलब आपने अभी लिखा है, but you are not quite happy with it, so you decide to collaborate with two other songwriters to track the bits that need work. सो काइंड ऑफ जैसे कि मैंने वेबसाइट बनाई और आपने देखा कि यार इस वेबसाइट पे बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो अच्छे कलर का नहीं है, तो आप बेसिकली मेरा कोड पुल करोगे अपने सिस्टम पे लोकली, एंड देन यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑल्सो, एंड देन यू कैन जस्ट पोस्ट इट ऑन योर गिटहब, एंड यू कैन लाइक गिव मी द कि भाई मैंने इसका कोड कॉपी किया था, क्या कह सकते हो उसको, क्रेडिट्स, यू विल गिव मी द क्रेडिट इफ़ यू वांट टू, लाइक इट्स ओके ब्रो, आई वोंट माइंड दैट मच. तो बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स बेसिकली क्या है? एट्रीब्यूटेबल चेंजेस, एवरी चेंज दैट मेड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ टीम मेंबर. यानी कि बेसिकली अगर आपने चेंज किया होगा तो आपको बेसिकली मैं एट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि इस बंदे ने ये वाला बटन जो था, इस आदमी ने ये वाला बटन चेंज किया, तो आपको मैं वो मतलब पता चल जाएगा कि अच्छा इस बंदे ने चेंज किया कि इस बंदे ने चेंज किया. इन डेप्थ ट्रैकिंग मेक्स reversing easy because every change is tracked, even the very small ones. It's easy to revert to an earlier version if needed. As you can imagine, this is a much needed feature in software development. जैसे कि मेरी वेबसाइट थी, आपने उसमें फॉन्ट साइज चेंज कर दिया, फॉन्ट साइज़ और छोटा कर दिया आपने उसमें, तो वो चीज़ बेसिकली अब क्या हो गया कि लोग कह रहे हैं कि ये तो वेबसाइट रीडेबल नहीं लग रही, मतलब बहुत छोटा फॉन्ट हो गया अब कोई पढ़ ही नहीं पा रहा. तो बेसिकली अगर वो एक इतना छोटा सा सेंज, मतलब वो एक नंबर होता है जैसे कि पिक्सल्स में होता है, जैसे कि अपने 13 लिखा था, किसी ने उसको 3 कर दिया, तो अब कोई पढ़ ही नहीं पा रहा कि फॉन्ट कैसा है. तो दैट्स वाई यू कैन जस्ट रिवर्ट टू द ओल्डर वर्जन एंड देन यू कैन फिक्स द बग. तो दिस इज़ लाइक इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल चेंज भी अगर कुछ करा होगा वेब फाइलों में, तो वो भी चीज़ आप रिवर्ट कर सकते हो. ऐसा नहीं कि पूरा कोड चेंज हो जाएगा. एक छोटी चीज़ भी अगर आप कमिट कर रहे हो, अगर आप फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर रहे हो, तो वो चीज़ भी डिटेक्ट कर लेता है गिट. एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन. गिट commit messages you send to the team detailing why you made a change, facilitating oh my god, I can't speak, facilitating good communication between team members. They also make it a lot easier if you forget what changes you made in the past. तो बेसिकली ये फैसिलेट क्या करता है, मैं क्यों बोलने का ट्राई कर रहा हूँ वैसे भी वर्ड, गुड कम्युनिकेशन ट्राई करता हूँ. वैसे अगर आपने कोई बैकग्राउंड कलर चेंज किया, मान लो फॉन्ट जो है वो बेसिकली रेड कलर का है और बैकग्राउंड जो है पिंक कलर का है. अब आपको पता है कि भाई एक तो भाई बैकग्राउंड पिंक कलर का क्यों है और फॉन्ट रेड कलर का क्यों है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, एक मैसेज टाइप करोगे कि भाई ये जो टेक्स्ट है और ये जो बैकग्राउंड कलर है ये थोड़ा सा अनरीडेबल है और काइंड ऑफ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए बेसिकली मैं बैकग्राउंड कलर को वाइट कर दे रहा हूँ और जो फॉन्ट कलर है उसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, इसलिए इट वुड बी लाइक ईजियर टू रीड. तो वो चीज़ आप ऐसे लिख सकते हो और आप कल को अगर आप 10 साल बाद देखते हो कि कोई आपसे पूछेगा कि भाई तुमने क्यों पिंक वाले बैकग्राउंड कलर को चेंज किया, तो आप कह सकते हो कि भाई वो आप देख सकते हो कि मैंने किया क्या है, मैंने लिखा क्या था कमेंट में. तो दैट इज़ ऑल्सो लाइक बेटर फॉर दैट. कॉन्करेंसी इन सॉफ्टवेयर projects, developers make plenty of changes to the source code. Usually there are numerous developers working on different things. One might be tweaking existing code for better security while another is working on a new feature. Git enables these developers to work concurrently while helping to prevent any conflicts between each developer's changes. और एक और लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, फिर साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा. ब्रांचिंग एंड मर्जिंग. टीम मेंबर्स कैन क्रिएट सेपरेट ब्रांचेस टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट एंड दे देन मर्ज देयर चेंजेस विद द मेन ब्रांच. ब्रांचेस आर टेम्परेरी एंड कैन बी डिलीटेड आफ्टर अ मर्ज. तो बेसिकली दोनों चीज़ें ये है. कॉन्करेंसी मतलब कि आप साथ में काम कर सकते हो एक प्रोजेक्ट पर. जैसे कि अगर मैं
किसी प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ और कोई बंदा पीछे की बैक एंड में काम कर रहा है डेटाबेस के साइड पर, तो दोनों साथ में उसी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं साथ ही में, कोई दिक्कत नहीं होगी, काइंड ऑफ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होएगा आपके कामों में कि आपको एरर आ रहा है इसकी वजह से उसकी वजह से, ऐसा नहीं होगा। और ब्रांचेस क्या है कि अगर बेसिकली आप कोई एक्सपेरिमेंटल फीचर डाल रहे हो, जैसे कि मान लो कोई मुझसे कहे कि भाई तुम्हारी वेबसाइट पे हम लोग अपनी मेरी यूट्यूब वीडियोस को भी वेबसाइट पे ऐड कर दें, बट यार हम लोग को आता नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि वेबसाइट स्टेबल चलेगी उसके बाद कि नहीं चलेगी, तो वी विल जस्ट लाइक क्रिएट अ सेपरेट ब्रांच फ्रॉम द मेन ब्रांच ऑफ माई वेबसाइट, एंड उस पर हम लोग इसलिए पहले ट्राई करेंगे कि हम लोग वीडियो डालने की कोशिश, हम लोग यूज़ करेंगे यूट्यूब की जो यूट्यूब आई थिंक प्रोवाइड करता है ना कि आप एम्बेड कर सकते हो अपने वीडियोज़ को अपनी वेबसाइट पे, तो वी कैन यूज़ दैट एंड वी विल काइंड सी कि UI कैसे चेंज होगा और कैसे फ़ोन पे दिखेगा कैसे टैबलेट पे दिखेगा। उसको टेस्टिंग करने के बाद वी विल मर्ज इट टू द मेन ब्रांच, जब टेस्टिंग हो जाएगी तो हम लोगों को लाइक दिस इज़ हाउ यू विल यूज़ ब्रांचिंग एंड मर्जिंग। इज़ गिट द ओनली वर्जन कंट्रोल सिस्टम? तो बेसिकली हम लोग गिट एंड गिटहब पढ़ रहे हैं एंड वी नो कि गिट एंड गिटहब बेसिकली क्या है, सॉरी गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो नो, गिट इज़ नॉट ओनली, isn't the only VCS, but it's the most popular and is considered the facto स्टैंडर्ड, कोई पता नहीं मेरे को, नहीं पता कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट हाँ स्टैंडर्ड टूल। अदर पॉपुलर वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स इंक्लूड फॉसिल आई गेस, एंड लाइक ये जो भी हैं सब वर्जन, एंड ये जो तीसरा वाला है। देयर आर slight variation between systems, including in how they handle core functions such as branching and merging, but the general gist is general gist is the same. Okay, the main difference between systems though is whether they are centralized or distributed. तो बेसिकली क्या एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्या एक ही गिट ही वर्जन कंट्रोल सिस्टम है पूरी दुनिया में? नहीं, इट इज़ लाइक द मोस्ट पॉपुलर वन। अदर ऑप्शंस टू लाइक डू एग्जिस्ट, बट उनका थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा स्लाइट डिफरेंट होता है उनका सिस्टम में, बट द मेन डिफरेंस इज आर दे सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेसिकली होता क्या है, अगर सेंट्रलाइज्ड है तो क्या मतलब है और डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है? Both centralized and distributed systems such as Git perform the same functions. The key difference between the two is that centralized systems have a central server where the team members push the latest version of their work. So you can think it as something like having a single central project that everyone shares. Distributed VCSs team members have a local clone of the entire project's history on their own device, so they don't need to be online to make changes or work on their code. Instead of a centralized server, they source their clone from an online repository. When developers work with Git, every team member's clone of the project is every team member's clone of the project is a repository that can contain all changes since the beginning of the project. Okay, when uh, when developers work with Git, every team member's clone of the project is a repository that can contain all changes since the beginning of the project. अब हिस्ट्री में हम लोग नहीं जाएंगे, बट इतना याद रख लो कि 2005 में गिट वॉज डेवलप्ड, इतना समझ लो, ठीक है। और बेसिकली लाइनस ट्राइवर, इतना समझ लो, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल हाउ डिड गिट, ओके। Git and GitHub, okay, यहाँ पर बेसिकली GitHub was designed in 2008 to make collaborative coding with Git easier, something the software as a service
platform excels at, even attaching millions of users worldwide. Attract Attracting millions of users worldwide. Okay. Git and GitHub are comple- complementary technologies. Git and GitHub are complementary technologies. Git is a version control system, while GitHub is a hosting service that helps team manage their repository. Okay. तो बेसिकली गिट भी बेसिकली बहुत हैं, जैसे मान लो गिटहब अगर समझोगे कि गिटहब इजंट लाइक द ओनली रिपोजिटरी होल्ड होस्टिंग वेबसाइट. बेसिकली गिट लैब भी है इंक्लूडिंग, और बेसिकली डेटा कैंप भी है, एंड लाइक डेटा बास्केट, बिट बास्केट. गिट इज़ मोर देन अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल. Why Git is popular? It has speed and tracking of changes, works offline. इसका मतलब क्या है? I don't know what the fuck is that. And it's like collaboration. तो बेसिकली आप बेसिकली कोलैबोरेट कर सकते हो लोगों से. How does Git works? Okay, ये पढ़ना वाला है. Want to start with would you want to start want to get started with Git. Okay, get started with it. Oh my god. It took so much time, bro, for me to understand the pun in that. I was like, want to get started with Git. Okay, तो ये पढ़ लेते हैं. How does Git works? To truly understand Git's power and efficiency, we need to delve into we need to delve into some of its technical. Oh my god, what the hell, क्या है ये? I don't understand this. I have to like Intricacy. Okay. इसका बेसिकली सिमिलर वर्ड क्या है? Turns. Okay. Intricacy. And let's see. गिट रेपोजिटरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप रेपो बोल सकते हो, ठीक है. रेपोजिटरीज, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में रेपो बोल सकते हो. अ गिट रेपोजिटरी इज़ अ डायरेक्टरी where all the files for a particular project are stored. It contains all of the project's revisions and history. When you initiate git in a directory, git init, तो बेसिकली ये कमांड जब आप किसी डायरेक्टरी के अंदर पेस्ट डायरेक्टरी के अंदर वो करोगे, क्या कह सकते हो उसको, डायरेक्टरी की तरह, जैसे कि आप किसी डायरेक्टरी के अंदर ये कमांड जब डालोगे और एंटर करोगे तो इट विल बिकम अ रिपोजिटरी. तो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट. ठीक है. कमिट्स क्या होते हैं? एवरी चेंज और सेट ऑफ चेंजेस दैट यू फाइनलाइज इन गिट इज कॉल्ड अ कमिट. ईच कमिट हैज़ अ यूनिक ID that allows Git to keep track of the changes and the order in which they were made. Staging area क्या होता है? Before finalizing changes with a commit, you first stage them. The staging area is like a draft place where you prepare your changes before committing them. To add files to a staging area, you used to git add कमांड. तो बेसिकली आपको अगर किसी फाइलों को ऐड करना है स्टेजिंग एरिया के अंदर, तो आपको बेसिकली गिट ऐड करना पड़ेगा. एंड बिफोर फाइनलाइजिंग विद अ कमिट यू फर्स्ट हैव टू इट्स लाइक अ ड्राफ्टिंग. तो बेसिकली आपको बेसिकली ऐसे होता है ना, जैसे ईमेल आप लोग लिखते हो, तो ईमेल अगर आपने कभी लिखा हो, ऐसे अगर आप व्हाट्सएप करते हो, व्हाट्सएप में बेसिकली अगर आपको जैसे कोई ऐसे किसी को भेजो, जैसे व्हाट्सएप में हाई लिखूँ और फिर आपने व्हाट्सएप क्लोज़ कर दो, वापस जब अगर आप आओगे तो उस चैट पे आओ तो वो देखो ड्राफ्टेड लिखा होगा, वहाँ पे ड्राफ्टेड इक्वल टू ये लिखा होता है. तो बेसिकली क्या है कि आपने सेंड नहीं किया
बट आपने रेडी, वो मैसेज वहाँ पे रेडी है, जैसे ही कुछ भी होगा तो आप सीधे उसको सेंड कर सकते हो। अब ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो अपने फ़ोन में कि आप इसलिए अपना व्हाट्सएप खोलो और किसी का भी डालो, उसमें डाल दो हेलो, फिर आप बंद कर दो व्हाट्सएप। वापस से अगर खोलोगे तो उसी चैट पे जब जाओगे तो आपको ऊपर से दिखाएगा कि ड्राफ्ट है एक मैसेज पहले से रखा हुआ। तो दैट इज़ लाइक द स्टेजिंग एरिया, दैट्स ऑल्सो अ स्टेजिंग, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ स्टेजिंग एरिया। तो ब्रांचेस क्या होते हैं? Git allows you to create multi files. Oh my god, what I'm reading. Git allows you to create multiple lines of development using branches. तो बेसिकली लाइन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? वो ब्रांचेस ही, जैसे कि आपकी एक मेन ब्रांच होगी, और अगर आप कोई ऐसे एक्सपेरिमेंटल फंक्शन यूज़ करो, जैसे एक्सपेरिमेंटल फीचर है, जैसे मैंने बोला ना कि वेबसाइट पे मेरे वीडियो डाल दोगे, मेरे यूट्यूब के वीडियो उठा के वेबसाइट पर डालोगे, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है कि हमको पता नहीं कैसा दिखेगा, पता नहीं कैसा यूआई दिखेगा, हम लोगों को अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, तो हम लोग उसको मेन पे नहीं डाल के हम लोग इसलिए एक बार एक ब्रांच कर लेते हैं अलग से, एक काइंड ऑफ लाइन, उस पर हम लोग देखते हैं कैसा लगेगा, और फिर अगर वहाँ पे अच्छा लगता है तो उसको मर्ज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो फिर से पढ़ लेता हूँ। द डिफ़ॉल्ट ब्रांच इज़ कॉल्ड द मास्टर ब्रांच, यानी कि जो मेरी वेबसाइट इस पर होस्टेड है और जो मेन हम लोग का डेवलपमेंट जो ब्रांच होगा वो मास्टर ब्रांच होता है। व्हेन यू वांट टू डेवलप अ फीचर और फिक्स अ बग, यू क्रिएट अ न्यू ब्रांच। तो बेसिकली ये इसका फंक्शन, ये मतलब कमांड आप डालोगे गिट ब्रांच और फिर जो ब्रांच का नाम डालना है। जैसे मान लो मैं जैसे कि मेरी जो मेन ब्रांच है वेबसाइट की, वो मान लो एक ऐसे कोई वेबसाइट है नहीं मेरे पास, बट मैं बोल रहा हूँ इसी एग्जांपल में। जब हम लोग आने वाले वीडियो से बनाएंगे, वेबसाइट वगैरह बनाएंगे HTML यूज़ करके, तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगा चीज़ आपको, ये सब प्रैक्टिकल होगा। यू कैन ऑल्सो इवन पुल द कोड, कि आप अपने से कुछ बना सको, उस पर कुछ चेंज कर सको। तो ये आपकी मेन ब्रांच हो गई। और उसके बाद व्हाट वी वर डूइंग, तो उसके बाद अगर मेरे को उसमें एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांच करनी है तो मैं कहूँगा गिट ब्रांच, और ब्रांच का नाम क्या रखूँगा? एक्सपेरिमेंटल, या फिर फीचर्स, या फिर जो भी आप चाहो रख सकते हो। टू इनकैप्सुलेट योर चेंजेस विदाउट अफेक्टिंग द मेन लाइन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, मर्जिंग, वंस यू आर डन with your changes on a branch, you can merge those changes back into the main branch or any other branch in using the git merge command. So basically जब आपका, जैसे मान लो मैंने अपनी वीडियोज़ को बेसिकली अपने वेबसाइट में एम्बेड कर लिया और आई एम हैप्पी विद द यूआई, हैप्पी विद एवरीथिंग, और वेबसाइट ढंग से काम कर रही है, तो एक बार वो चेंजेस हो गए हैं तो you can merge that thing into the back, you can merge that thing into the main branch. तो बेसिकली क्या करोगे, अपने एक्सपेरिमेंटल ब्रांच में जो भी आपने फीचर ऐड किया था उसको वापस से मर्ज कर दोगे, तो इट विल गो इनटू द मेन ब्रांच। तो आपकी जो काइंड ऑफ you have to like delete your branch also after that, like we will not go into that, we will not say about deleting, I don't know, I'm not sure, but yeah, we will merge it। उसके बाद देखते हैं क्या होगा उसका। Now we can see remote repositories. Basically, remote repositories, while you work locally on your system, on your machine, Git also allows you to connect to remote repositories using the git remote command. This is specifically useful for collaboration, as discussed. The most common रिमोट रिपोजिटरी इज़ गिटहब। तो हम लोग बेसिकली गिटहब यूज़ करेंगे। तो अब बेसिकली मैं अपना कोड वहाँ पे डालूँगा और आप वहाँ से उसको पुल कर लोगे, या फिर जो भी कॉपी कर लो या क्लोन कर लोगे इन द वे। अब यहाँ पे बेसिकली हम लोग पुश एंड पुल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज सेइंग कि मैं पुल कर दूँगा, पुश कर लोगे, वो सब यही है। वंस कनेक्टेड टू अ रिमोट रिपोजिटरी, यू कैन पुश योर चेंजेस टू इट। यानी कि मैं पुश करूँगा अपना वेबसाइट अपने गिटहब पर, अलाउइंग अदर्स, यानी कि आप लोगों को टू देखने को, मतलब आप देख भी सकते हो मेरा कोड मैंने क्या लिखा वेबसाइट का, टू कोलैबोरेट ऑन योर कोड, मतलब आप इसलिए रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि क्या चेंजेस कर सकते हैं या क्या नहीं है, आप लोग बेसिकली आप कमेंट वगैरह कर सकते हो उस पर। सिमिलरली यू कैन पुल चेंजेस फ्रॉम अ रिपोर्ट रिपोजिटरी टू अपडेट योर लोकल वर्जन विद द लेटेस्ट वर्जन। जैसे कि हम लोगों ने अभी ये तो इसलिए इस वाली वीडियो में तो हम शायद कोडिंग नहीं करेंगे, मैं तुमको इसलिए सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके दिखाऊंगा कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करते हैं, ये गिट वाला सॉफ्टवेयर।
एंड देन वी विल लाइक धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं ये सब कुछ डिस्कस होगा, इसका सबका प्रैक्टिकल होगा। एंड फेच का मतलब क्या होता है? फेच इज सिमिलर टू पुल, सॉरी सिमिलर टू, पुल ही तो है, हाँ पुल। द गिट फेच command allows you to retrieve updates from a remote repository, but it does not automatically merge the changes into your current branch. It gives you the flexibility to review changes before integrating them. सो ये चीज़ मुझे पहले तुम लोगों को प्रैक्टिकल में दिखानी पड़ेगी, मुझे देखनी पड़ेगी खुद भी। तो जो मेन चीज़ ये बोल रहे हैं कि आप लोग बेसिकली जैसे पुल जो है, आप जैसे वेबसाइट जो कोड आपको गिटहब पे दिख रहा है, आप उसको अपने सिस्टम पे पुल कर सकते हो लोकली। बट अगर आप बेसिकली पुल की जगह फेच यूज़ करोगे तो फेच में बेसिकली क्या करेगा, इट विल अलाउ यू टू रिट्रीव अपडेट्स फ्रॉम द रिमोट रेपोजिटरी, बट डज नॉट ऑटोमेटिकली मर्ज द चेंजेस इनटू योर करंट ब्रांच. It gives you the flexibility to review changes बिफोर इंटीग्रेटिंग देम. यानी कि ये मतलब आपको एक बार ऑप्शन देगा कि आप देख लो कि भैया क्या चेंज होने वाला है, मतलब सारे चेंजेस आपको दिख जाएंगे कि कौन सी लाइन चेंज हो रही है. मतलब एक तरह से मान लो आप जैसे गेम अपडेट करते हो, जैसे आप पबजी अपडेट करते होगे अपना ना, तो बस वही चीज़ है. आपका पूरा गेम अपडेट नहीं होता, जैसे आपका पूरा गेम भी हो सकता है 3 GB का होगा, 4 GB का होगा, जो भी गेम आता है पबजी. मैंने बहुत दिन से डाउनलोड नहीं किया हुआ है गेम, बट हाँ, तो बेसिकली उसमें अपडेट कितना होता है, अपडेट आता है 2.5 GB का और 6 MB का, 6 MB का नहीं मतलब 600 MB का, 2.5 GB का. तो पूरा गेम भले 3 GB 4 GB का होगा, बट अपडेट सिर्फ 600 का आता है. यानी कि ये जो फेच है ना, ये बेसिकली अपडेट ही है. और आप बेसिकली रिव्यू कर सकते हो कि आप क्या अपडेट कर रहे हो. जैसे कि आप जब प्ले स्टोर पर जाते हो तो आप देखते हो कि भाई विंटर अपडेट आ गया, क्रिसमस अपडेट आ गया, ये अपडेट आ गया, तो आप उस तरह से आप देख के पहले आप रिव्यू करते हो. और जब आपको अच्छा लगता है कि अरे भाई मज़ा आएगा, ये नई स्किन आ गई, ये नया मैप आ गया, देन यू क्लिक ऑन दैट, देन यू इंस्टॉल दैट. तो बेसिकली ये वही चीज़ है. उसके बाद हम लोग क्लोन पे आ गए. क्लोन जैसे मैं आपसे कहता हूँ आप मेरी रिपोजिटरी क्लोन कर लेना, तो ये क्लोन है. इफ़ यू वांट टू हैव अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी, जैसे मेरा जो वेबसाइट की रिपोजिटरी हम लोग बनाएंगे, तो बेसिकली आप उसको अगर आपको वो पूरी चाहिए अपने सिस्टम पे, तो यू विल यूज़ द गिट क्लोन कमांड. दिस क्रिएट्स अ न्यू डायरेक्टरी इन योर सिस्टम, इन योर मशीन, यानी आपकी लोकल मशीन पर, विद ऑल द रिपोजिटरीज फाइल एंड हिस्ट्री. मतलब मेरी पूरी सारी फाइल्स भी आ जाएंगी आपके पास, सारी कोडिंग फाइल्स आ जाएंगी और उसकी हिस्ट्री भी आ जाएगी. मतलब उसके अगर मतलब उसमें अगर 2-3 वर्जन पुराने वाले भी होंगे ना, वो भी आपके डेटा उसका भी डेटा आपके पास आ जाएगा. यानी कि आप बेसिकली काइंड ऑफ गेट रिवीजन काइंड ऑफ है ना, मेरी वेबसाइट के पुराने वर्जन पे आ सकते हो. जैसे अगर मेरी वेबसाइट का अगर 3 वर्जन चल रहे होंगे, तो आप सबसे फर्स्ट वर्जन पे भी काइंड ऑफ कवर कर सकते हो, वो भी आपको डेटा आ जाएगा. Conflict resolution. Sometimes when multiple people work on the same piece of code, conflicts can arise. Git has inbuilt mechanisms to highlight these conflicts, allowing developers to manually resolve them before finalizing a merge. Okay, तो ये चीज़ तो हम लोग देखनी पड़ेगी. मतलब मोटा मोटा ये है कि जब आप बेसिकली बहुत सारे लोग अगर एक कोड बेस पे काम करते हैं, तो बेसिकली हो सकता है डिपेंडेंसीज हटाने या फिर बढ़ाने की वजह से दिक्कत हो सकती है. यानी कि वो आपको गेट बता देगा कि भैया इस वजह से ये प्रॉब्लम या फिर एरर आ रहा है, तो यू कैन रिजॉल्व इट फॉर योर सेल्फ, कि आप मैनुअली उसको थोड़ा चेंज करके अपना काम कर लो और देन यू फाइनलाइज. हाँ, log. To view the history of your commits, Git provides the git log command. This shows a list of commits, their unique IDs, and the messages associated with them. क्या मतलब हुआ भाई इसका? Logs मतलब कि to view the history of your commits, Git provides the log history. Git provides the git log command. अच्छा, तो एक कमांड आपको दिया था git log command. This shows the list of commits, their unique IDs and the message associated. अच्छा, तो ये बहुत सिंपल है. मतलब एक तरह से आपने रजिस्टर खोल लिया एक तरह से कि भैया ये है नाम इसका, ये है इसकी एज, ये है उसका ईमेल आईडी और ये इसका रोल नंबर, जो भी आप समझ सकते हो. ये वैसे ही है कि आप जब अगर गिट लॉग करोगे, तो उस पर्टिकुलर रेपोजिटरी में जितनी बार लोगों ने काइंड ऑफ होगा ना, उसकी यूनिक आईडी आ जाएगी उन लोगों की, और इट विल शो द गिट कमिट्स ऑल्सो एंड शो द मैसेज एसोसिएटेड विद देम ऑल्सो. तो दैट विल हैपन. तो इसलिए हम लोग का ये तो ख़त्म ही हो गया. आई होप आपको समझ आया होगा ये पूरा. और अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं भाई, मुझे भी बहुत सी चीज़ें समझ नहीं आई.
बट एक बार जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, मैं इसको इन सब चीज़ों को हम लोग बेसिकली कोडिंग के थ्रू करके, मतलब ये जो कमांड्स हैं इनको रन करके दिखाऊंगा तो हमेशा से ज़िंदगी भर याद हो जाएगा ये सब। ये ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। थ्योरी समझ नहीं आती, मुझे भी थ्योरी समझ नहीं आती एक्चुअली, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गया। वाई डू यू वॉन्ट टू गेट स्टार्टेड विथ गिट? हाँ, आई वॉन्ट टू गेट बट स्टार्टेड बट नॉट लाइक दिस। ओके, द मिसिंग सेमेस्टर ऑफ योर CS एजुकेशन। गिट तो हो गया एक्चुअली। व्हाट इज़ गिट हो गया है, वीडियो हम लोग को देखनी नहीं है। एक्चुअली सब कुछ हो गया इफ़ यू थिंक अबाउट इट। देखो, बेनिफिट्स हो गए, बेनिफिट्स हमने आपको बता ही दिए हैं। गिट वर्जन भी हो गया, वाइट इज़ इम्पॉर्टेंट भी हो गया, और बेसिकली कंट्रोल भी कर लिया हम लोगों ने। मतलब क्या होता है वर्जन कंट्रोल बता दिया, सबसे पहले ही टॉपिक था। ये भी मैंने आपको बता दिया। बहुत एडवांस में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर समझ लो कि क्या मतलब गिट क्या है और अदर क्या होते हैं। जैसे दो टाइप के हैं, एक तो सेंट्रल है और एक है डिसेंट्रलाइज्ड, आई थिंक सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? सेंट्रल वाले में क्या होगा, सेंट्रलाइज्ड में क्या होगा कि आपके पास एक ही है जो मेन सेंटर है, वहीं पे सारी फाइलें हैं, आपको मतलब उसी में जाके एडिट करना पड़ेगा कोड। और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि हम लोग जो यूज़ करें, हम लोग गिट यूज़ करें, तो गिट में बेसिकली क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाला है वर्जन। तो उसमें बेसिकली आपके पास भी एक लोकल कॉपी होती है मेन सॉफ्टवेयर की। तो बेसिकली इट्स लाइक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह है कोड। तो इस तरह समझ लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल गिट लोकली। ये तो करना बहुत मज़ेदार है काम, मुझे थोड़ी देर आराम मिल जाएगा मेरे गले को। तो बेसिकली हम लोग कौन सा लिंक क्लिक करें? देखो, कोई भी करता तो मैं ऑफिशियल लिंक क्लिक कर रहा हूँ, आप भी ऑफिशियल क्लिक करना, सीधा को वेबसाइट पर ले जाएगा। तो ये बेसिकली गिट की वेबसाइट है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं पहले। तो अगर आपके पास मैक ओएस है तो आप मैक ओएस करना क्लिक। मेरे पास विंडोज़ है, जिसके पास लिनक्स हो लिनक्स करेगा, और जो बिल्ड फॉर सोर्स करना चाहे बिल्ड सोर्स कर। मुझे नहीं पता बिल्ड ऑफ सोर्स कौन करना चाहेगा, बट अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। मतलब अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस है तो आप उस पर क्लिक करोगे, जो लिनक्स यूज़ करता है वो लिनक्स करेगा। मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं विंडोज़ पे करूँगा क्लिक। तो विंडोज़ में बेसिकली गिट फॉर 64 बिट, एंड आई थिंक मेरा 64 है, हाँ। तो डाउनलोड होने लगा। ओह माय गॉड यार, मैं पहली वीडियो इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट इज़ सो लाइक रीड करना बड़ा डिफ़िकल्ट लगे, मुझे लगता है बहुत ईजिली हो जाएगा रीडिंग, बट अब मैं करना पड़ रहा है तो समझ आ रहा है कितना टाइम लगेगा रीड करने में, काइंड ऑफ। सो ये बेसिकली है। आप पहले यस करोगे, और लाइसेंस तो कोई पढ़ता नहीं है, आप पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको अपने C ड्राइव में ही करूँगा, अगर आपको चेंज करना है तो कर लो। द फोल्डर ऑलरेडी, हाँ असल में अपना गिट जो है अनइंस्टॉल किया था, जिससे मैं आपको दिखा सकूँ इंस्टॉल करके वापस। तो मेरा पहले से इंस्टॉल था, इसलिए मेरे में दिखाएगा, आप में ऐसा कुछ नहीं दिखाएगा अगर आपने कभी इंस्टॉल नहीं किया होगा पहले। और अगर आपके में दिखा रहा है तो यू कैन ऑल्सो इंस्टॉल इट एनीवेज, आई विल इंस्टॉल इट एनीवेज। और ये सब मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इन सबको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप इतना एडवांस में वैसे कुछ नहीं सीख रहे हो, बेसिक चीज़ें इसमें भी हो जाएंगी मोस्टली। और कोई दिक्कत होती तो आपको बता ही दूँगा मैं, ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपको। सब कुछ ऐसे ही छोड़ दो, मेरे को उसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जो चीज़ तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे ही छोड़ दो, एक्चुअली सारे ऐसे ही छोड़ दो, मैं तो इसको पढ़ता भी नहीं था एक्चुअली। बस लेट इट इंस्टॉल। अगर कुछ होगा भी प्रॉब्लम तो बाद में हम लोग उसको चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि चेंज नहीं होगा बाद में। आई होप हो जाए चेंज बाद में, वरना मुझे वापस इंस्टॉल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल कर लेंगे। ओह माय गॉड ब्रो, कहाँ गया भाई? सो ये हम लोग कर देंगे, ये हटा देंगे क्योंकि मुझे व्यू नहीं करने हैं रिलीज़ नोट्स, तो मैं ऐसे हटा दे रहा हूँ, इसको अनचेक कर दे रहा हूँ, एंड लेट्स गो। So I kind of paused the video there, like the recording,
just to see how long this session has been going for. And yeah, it is almost 40 minutes now. So first of all, I just want to say thank you for staying till the end, and I hope you gained something from this video, and I also hope you liked the raw and uncut study session with me. So I kind of did a lot of theory dumping on you guys, kind of skipped on the history and the popularity thing, but I will be providing the link of this website to you in the description, so you can self study that. I thought it was like unnecessary thing, it was not like that difficult, so I just did not do that. And if you did not understand anything in this video, if like a particular topic, you can always comment it down below. I will try to help you the best I can. And if I said something wrong, you can always correct me in the comment section. I will pin that comment so other can learn from that. If you have something for me to improve on, so I'm open to suggestions. I just want you guys, if you liked this video, I just want you guys to like kind of share it with your buddies. If you have like a WhatsApp group, and you can just share it there so other people can also study in this study group. I mean, that's all for this week's study session then, I guess. Till then, take care. I will see you next week. Bye.